Biotechnology principle and processes. Human Genome Project, back cloning vector. Genetic engineering. Technique to alter the chemical of genetic material. Introduced into host phenotype change. Bioprocess engineering, sterile or aseptic environment, growth of specific microbe or eukaryotic cell. Genetic engineering allows us to isolate and introduce only desirable genes into target organism, include recombinant DNA, gene cloning, gene transfer. Genetic engineering allows us to isolate and introduce only desirable genes into target organism, include recombinant DNA, gene cloning, gene transfer. ORI, specific DNA sequence responsible for initiating replication. ORI containing chromosome plus alien DNA replicate and multiply itself in host organism. This is cloning. ORI containing chromosome plus alien DNA replicate and multiply itself in host organism. This is called cloning. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने डेवलप करा था? कोहेन एंड बोयर इन 1972. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने डेवलप करा था? कोहेन एंड बोयर इन 1972. एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन ड्रग रेजिस्टेंस यूज़ करी थी. एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन ड्रग रेजिस्टेंस किस प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टिम्फी. वेक्टर कौन सा यूज़ करा था? प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टिम्फी. इसे दोनों को मिलाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया. ट्रांसफर इट टू ई कोलाई बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला. ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करा टू ई कोलाई बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहेन एंड बोयर 1972. एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टिम्फिरैनम वेक्टर. इस दोनों को मिलाकर बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ट्रांसफर इट टू ई कोलाई बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला. डीएनए लाइगेज लिंकेज पॉसिबल करवाता है. कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर एंड्स. कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर एंड्स. डीएनए ligase linking possible act at cut DNA molecule and join their ends. Recombinant DNA replicate using host DNA polymerase enzyme. Recombinant DNA replicate using host DNA polymerase enzyme. Recombinant DNA replicate using host DNA polymerase enzyme. Tools used in DNA technology: restriction enzyme, polymerase enzyme, ligases, vector, host organism. E. coli 1963 में E. coli modified DNA add methyl group DNA methylase cut DNA restriction endonuclease. 1963 E. coli modified DNA add methyl group DNA methylase cut DNA restriction endonuclease. First restriction endonuclease. First discovery Hind 2 characterized 5 years later. Recognized sequence of 6 base pair. Today we know 900 restriction enzymes from 230 strains of bacteria. First discovery Hind 2 characterized 5 years later. Recognized sequence of 6 base pair. Today 900 restriction enzyme from 230 strains of bacteria. Naming first letter genus, सेकंड बाकी के 2 लेटर स्पीसीज. इसे रिप्रेजेंट करते हैं नेम ऑफ स्ट्रेन. ये रोमन नंबर होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम बैक्टीरिया. इको R1 हमने आइसोलेट करिए. ईस्टीचिरिचुकुराई कोलाई R1.
RY13 मुझे नहीं आता प्रोनाउंस. Now restriction enzyme, larger class nucleases, इसमें भी exonucleases, endonucleases. Exonucleases remove nucleotide from end part of DNA. Endonucleases, endo means अंदर, cuts at specific position within DNA. Now इंस्पेक्टिंग लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस. एंजाइम डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस. बाइंड एंड कट विद इन पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. बाइंड एंड कट विद इन पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ब्रेक करता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन को. ब्रेक शुगर फॉस्फेट बैकबोन मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ब्रेक शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम larger class nucleases, exonucleases, endonucleases. Exonucleases remove nucleotide from ends of DNA. Endonucleases cut at specific position within DNA. Restriction enzyme inspecting length of DNA sequence, bind and cut within palindromic nucleotide sequence, break sugar phosphate backbone मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. इको R1 का बेस पेयर सीक्वेंस GAA-TTC, GAA-TTC. हाइन 2 का GTT-AAC, हाइन 2 का GTT-AAC. ट्रिक E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, GA तो A पहले आएगा. हाइन 2 H बाद में आता है तो T भी बाद में आएगा. नाउ ये डायग्राम देख लो. जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरिजिन जीन, स्टिकी एंड, स्टैगर्ड एंड, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड्स. डीएनए लाइगेस आएगा, जॉइन करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, जॉइन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा. स्टिकी एंड, डीएनए फ्रैगमेंट जॉइन एट स्टिकी एंड विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस. Restriction enzyme. Restriction enzyme cut the end of DNA a little away from the center of palindromic sequence. Restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of the palindromic sequence, but between same two bases on opposite strand. Between two same bases on opposite strand, leaving overhanging stretches called sticky ends. Form hydrogen bond with complementary cut counterpart. Form hydrogen bond with complementary cut counterpart और फैसिलेट करता है एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेस. ये देख लो, ये होगा स्टिकी एंड, ये फॉर्म करता है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड और डीएनए लाइगेस का एक्शन होता है स्टिकी एंड पर. तो वही है. नाउ agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis. DNA fragment negatively charged move towards anode. Medium or matrix used, agarose. Neutral polymer extracted from seaweed. Neutral polymer extracted from seaweed. अगार अगार वही है. सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज. डीएनए फ्रैगमेंट की सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज. स्ट्रेन इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेडिएशन और लाइट पर एक्सपोज किया जाता है. उसमें ब्राइट ऑरेंज बैंड कलर के डीएनए फ्रैगमेंट दिखते हैं. ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखते हैं. डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम जेल इल्यूजन. डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम जेल कॉल्ड इल्यूजन. सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए. सिंपलेस्ट
cloning vector plasmid DNA. Copy number directly proportional to ORI site. ORI is a sequence from where replication start. ORI control copy number of linked DNA. ORI control copy number of linked DNA. Now selectable marker. Selectable marker help in identifying and eliminating recombinant. Selectable marker help in identifying and eliminating recombinant. ई कोलाई. ई कोलाई के लिए पर कौन कौन से ड्रग यूज़ कर सकते हैं हम? एम्पिसिलिन, क्लोराम्फिसिनॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैरामाइसिन. नॉर्मल ई कोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक. इसके अगेंस्ट नॉर्मल ई कोलाई कोई एंटीबायोटिक यूज किसी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखाती. नॉर्मल ई कोलाई इसमें से कोई से भी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखाती. सेलेक्टेबल मार्कर जीन एम्पिसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसमें ट्रांसफर करी तो इसे रेजिस्टेंस दिखाएगी. नाउ दिस डायग्राम. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए BAM-H1 साल 1 ये क्लोनिंग साइट होगी या रेस्ट्रिक्शन साइट होगी. BAM-H1 आइसोलेट की गई है फ्रॉम बेसिलस अमाइलिक्यूफैक्सन. देख लो यार, मुझे नहीं आती प्रोनाउंसिएशन. रोप रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. ORI एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. PVU1, PST1, EcoR1, CLAV1, HIND2 डायग्राम. बस. Now these three cases: non-transformant, non-recombinant, sensitive to both ampicillin and resistant, do not grow. ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब दोनों के लिए रेजिस्टेंस, शो रेजिस्टेंस टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट मतलब ट्रांसफर्ड जीन है, मतलब टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिलिन रेजिस्टेंस नहीं है. यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन के साइट पर जाकर टारगेट जीन अटैच हुई है तो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. एक्टिवेशन ड्यू टू इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन. क्या कहते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ दिस जीन. तो इसे क्या कहते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेलेक्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेलेक्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट. टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव ड्यू टू इंसर्शन, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट. ट्रांसफॉर्मेंट के सिलेक्शन में कौन हेल्प कर रही है? एम्पिसिलिन. टेट्रासाइक्लिन रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में हेल्प कर रही है. क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिवेट हो गई है ड्यू टू इंसर्शन. लैक्सेट जीन और बीटा ग्लाइकोसिडिक जीन, इसमें भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडिक एंजाइम. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडिक एंजाइम मतलब लैक्सेट जीन सीक्वेंस और बीटा ग्लाइकोसिडिक जीन सीक्वेंस. ये इनएक्टिवेट करता है बीटा ग्लाइकोसिडिक जीन को. सेलेक्टेबल मार्कर ये एक्टिवेट करता है बीटा ग्लाइकोसिडिक जीन को. सेलेक्टेबल मार्कर होता है यहाँ पर बीटा ग्लाइकोसिडिक जीन. इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला. रिकॉम्बिनेशन नो कलर. रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला. ये जीन अब इनएक्टिवेट हो गई है रिकॉम्बिनेंट में तो कोई कलर नहीं बनेगा. नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन एक्टिवेट है मतलब मेटाबॉलिज्म होगा तो ब्लू कलर बनेगा. होस्ट सेल क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए. होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल, क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए. प्लांट सेल एगारोबैक्टीरियम, ट्यूमिफेशियम, टीआई प्लाज्मिड. कैंसरस होता है डिसार्म करके यूज़ करते हैं मतलब इसमें से टी
डीएनए रिमूव करते हैं। एनिमल सेल में रेट्रोवायरस कैंसरस होता है, डिसार्म करके एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट बैक्टीरिया, कॉम्पिटेंट होस्ट बैक्टीरिया डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल सोल्यूबल इन वाटर। केमिकल ट्रीटमेंट चिल्ड, केमिकल ट्रीटमेंट चिल्ड इन कैल्शियम, चिल्ड कैल्शियम ट्रीटमेंट, कैल्शियम में सोल्यूशन में डालेंगे, फॉर्म पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। उसके बाद आइस में डालेंगे, उसके बाद हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस का, फिर से एक बार आइस में डालेंगे। इस तरह से डीएनए चला जाएगा उसमें, फिर बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हो जाएगी। माइक्रो इंजेक्शन फॉर एनिमल सेल्स, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए होता है? फॉर एनिमल सेल्स, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती। डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस, डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस। बायोलिस्टिक्स और जीन गन, बायोलिस्टिक्स और जीन गन किसके लिए होता है? प्लांट सेल्स के लिए होता है। प्लांट सेल्स के लिए होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है। गोल्ड और टंगस्टन के अराउंड डीएनए को रैप किया जाता है और उसके बाद गन से फायर किया जाता है। ओके। डिसार्म पैथोजन अलो टू इन्फेक्ट सेल, डिसार्म पैथोजन को क्या करता है? अलो किया जाता है कि जा भाई कर इन्फेक्ट जिसको करना है और कर डीएनए ट्रांसफर। सेल वॉल रिमूवर, प्लांट सेल में सेलुलोज का यूज़ होता है। एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल में लाइसोजाइम यूज़ होता है। फंगल सेल काइटिनेस, फंगल सेल काइटिनेस। प्लांट सेल सेलुलोज, बैक्टीरियल सेल लाइसोजाइम, फंगल सेल काइटिनेस। आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएस राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएस। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए कैसे करा जाता है? चिल्ड इथेनॉल में डाला जाता है, उसके बाद स्पूनिंग करके बाहर निकाला जाता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल में डाला जाता है, उसके बाद स्पूनिंग करके बाहर निकाला जाता है। नाउ एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज चेक प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्यों हम यूज़ भी करते हैं? टू चेक प्रोग्रेस ऑफ restriction enzyme digestion. PCR in vitro polymerase chain reaction, PCR in vitro polymerase chain reaction. Denaturation फर्स्ट स्टेप denaturation, उसके बाद हीट। डिनेचुरेशन मतलब हीट ही करा जाता है 90 to 95 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद एनालिन में प्राइमर्स यूज़ होते हैं, 2 सेट्स ऑफ डीएनए प्राइमर्स। ऑलिगोन्यूक्लियोसाइड्स यूज़ होते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यूज़ होते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये 2 एंजाइम भी यूज़ होते हैं। और इसके बाद ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन एट 72 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 90 to 95, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 1 डिनेचुरेशन, स्टेप 2 एनालिंग, स्टेप 3 एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। वही है डिनेचुरेशन, breaking of hydrogen bond, double stranded DNA converted into single stranded DNA, annealing 50 to 60 degrees Celsius, use 2 sets of DNA primers, oligonucleotides। प्राइमर्स किसे कहते हैं? ऐसे सिंगल स्टैंड में जो इतना सा सीक्वेंस होता है उसे कहते हैं प्राइमर्स। डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 साइकिल्स में एम्प्लीफिकेशन होता है 1 बिलियन टाइम। निक मतलब ब्रेक और कट, निक मतलब ब्रेक और कट इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आता है। निक मतलब ब्रेक और कट। टैग पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, ऑब्टेनिंग फोरिजिन जीन प्रोडक्ट टारगेट जीन। ऑब्टेनिंग फोरिजिन जीन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले टारगेट जीन को आइडेंटिफाई और आइसोलेट करते हैं, उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं, सिलेक्शन करते हैं रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का, उसके बाद लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, पीएच, विटामिन, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट और सॉल्ट और O2 होना चाहिए। प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलॉगस होस्ट, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। प्रोटीन इनकोडेड जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट, प्रोटीन इनकोडेड जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या क्या करते हैं? डाउनस्ट्रीम
प्रोसेसिंग में हम क्या क्या करते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव और मॉडिफिकेशन प्लस क्लिनिकल ट्रायल्स, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। और ये दोनों डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वैरी करता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वैरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बायोरिएक्टर 100 से 1000 लीटर, मोस्ट कॉमन स्टीयरिंग टाइप, स्टीयर टैंक रिएक्टर, cylindrical with curved base. Yeah, that's it for this chapter.